Hello, welcome to GPS classes. Today we are going to discuss the topic of Red Sea and the geopolitical conditions surrounding it. Okay. Now see, first we have to understand the geography of the region. We are going to discuss multiple things about this area. See, this is known as the Red Sea. It is a Rift Valley zone. Okay. This region in Egypt is known as the Sinai Peninsula. Sinai Peninsula near Egypt. This line, this particular line is known as the Suez Canal. Suez Canal. It started its operations in 1969. The same date when birth of Mahatma Gandhi took place in India. 1969, Suez Canal was opened initially by UK and France. The Suez Canal is a very important canal which joins the Mediterranean Sea with the Red Sea and the Indian Ocean. This route reduces the distance from Europe via Red Sea to India by 7,000 kilometers. Around 7,000 kilometers distance is reduced. So you can see the Suez Canal is very important. Currently it is owned by Egypt after the 1972 Suez Canal crisis. The 1960s, you just write 1960s Suez Canal crisis. Okay. See, the Suez Canal has many lakes in it. Okay. For example, major lakes in Suez Canal are number 1, Great Bitter. Number 2, Little Bitter. And number 3, Lake Timsah. You have to arrange this in north to south. Okay. This was a question in previous year IAS exam. Sorry, the Suez Canal was established in 1869. Okay. Mediterranean Sea, Red Sea and Indian Ocean. Now, the important thing is this country is Yemen. Yemen, major port हुदिया. यमन का मेजर पोर्ट है हुदिया, वो यहाँ पर है. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. यहाँ पर एक कंट्री है, इसका नाम है सऊदी अरेबिया. इन अफ्रीका द कंट्रीज आर एरिट्रिया, जिबूती, सुडान and Egypt. This side Egypt. Just remember the countries. In Africa it is known as Seed. Sudan, Egypt, Eritrea and Djibouti. Whereas in this Persian Gulf region, Persian Peninsula region, which is Saudi Arabia and Yemen, these are the countries which are bordering the Red Sea bordering countries. Figure Red Sea bordering countries. Now see, the important question which I am thinking will come in your exam is Yemen's major port Hudaydah and the Houthi rebels of Yemen. Yemen's
हाउथी रेबल्स. See, if you look at last year, there was a current affair. A ship known as Evergreen, it blocked the Suez Canal. Ship Evergreen blocked the Suez Canal. यहाँ से शिप आ रहे थे, शिप जाएंगे, ये शिप फंस गया था एवरग्रीन. इसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि स्वेज कैनाल वर्ल्ड का अराउंड 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यहाँ से होता है. अराउंड 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कहाँ से होता है? स्वेज कैनाल से होता है. इस शिप एवरग्रीन के यहाँ पर ब्लॉक हो जाने से 12% वर्ल्ड ट्रेड रुक गया था, जिसकी वजह से जिस रास्ते से पहले वास्को डी गामा आया था भारत, उस रास्ते से अब शिप को डाइवर्ट करना पड़ा था पिछले साल. मतलब पूरा अफ्रीका घूमकर फिर इंडिया आ रहे थे, वास्को डी गामा रास्ते पर आ गए थे बस एक शिप के फंसने से. इतना इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनाल, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए. क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये होगा, इसलिए इसको अरेंज करना. ये पीसीएस में आ चुका है पिछले साल. ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, लेक तिमसा, नॉर्थ टू साउथ. अब जो आने वाला क्वेश्चन है वो मेरी नजर में है, रेड सी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है पीसीएस के लिए. आईएस के लिए यमन का मेजर पोर्ट है हुदिया, एंड हाउथी रेबल्स, यहाँ पर जो भी शिप जा रहा है हाउथी रेबल्स उस पर अटैक कर रहे हैं. यमन के हाउथी रेबल मतलब आतंकवादी ग्रुप टाइप का. तो उनको रोकने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चला रखा है. टू स्टॉप देम यूएसए हैज लॉन्च्ड एन ऑपरेशन something known as Prosperous. Okay, just remember US has launched Operation Prosperous to stop the Houthi rebels. Okay, सीड और यहाँ से सऊदी अरेबिया और यमन आप ले लीजिएगा. सिनाई पेनिनसुला नियर इजिप्ट, रेड सी. अच्छा, यहाँ पर एक और है, जो स्वेज कनाल वाला रीजन है, स्वेज कनाल वाले रीजन पे यहाँ पर एक कंट्री आती है साइड में, उसका नाम है जॉर्डन. यहाँ पर है इजराइल. आपको पता है इजराइल और जॉर्डन बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, और इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपका पड़ता है डेड सी. इजराइल और जॉर्डन के बीच में कौन सा सी पड़ता है आपका? डेड सी, जिसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है. इसकी इतनी ज्यादा सैलिनिटी है कि इसमें जानवर नहीं पाए जाएंगे. नीचे ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है और लोग डूबते भी नहीं है, पर ज़्यादा देर तैरना नहीं होता है इसमें, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब कर सकती है. आप डूबेंगे नहीं, ट्रांसपेरेंट होगा, नीचे आपको पूरा पारदर्शी दिखाई देगा. डेड सी. डेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? इजराइल और जॉर्डन. अच्छा, जॉर्डन का एक पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज में चल रहा है, आप ध्यान देना. पोर्ट अकाबा. पोर्ट अकाबा जॉर्डन में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा ये आईएएस के लेवल से. और एक इजराइल का पोर्ट है, पोर्ट एलियात. पोर्ट एलियात, अगर आपने ये चीज याद रख ली, आप बहुत अच्छे से जियोपॉलिटिकल कंडीशन समझ जाएंगे आप रेड सी की. ये आपके पीएसआईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए. ये वाला जो टॉपिक था. अच्छा, रेड सी की रिफ्ट वैली. अभी आजकल करंट ट्रेंड में एक और टॉपिक चल रहा है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, फिनिश हो जाएगा. हमको पता है ये रिफ्ट वैली है. रिफ्ट वैली है मतलब ये और फट रही है. रिफ्ट मतलब होता है दूर दूर हो रही है. एक और आपके यहाँ पर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट आ रहा है. ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट ऐसे 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 करके ये पार्ट निकलने वाला है. लेक विक्टोरिया इसका पार्ट नहीं है, याद रखना, लेक विक्टोरिया इसका पार्ट नहीं है. ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है. लेक विक्टोरिया, और ये जो लाइन मैंने डॉटेड बनाई है इसका नाम है ग्रेट अफ्रीकन फॉल्ट लाइन. कई लोगों की थ्योरी आ रही है कि ये एक टाइम पर टूट जाएगा अफ्रीका से, और इसका नाम रखा उन्होंने सोमाली प्लेट करके. ये अलग होगा और एक टाइम आएगा जब ये इंडिया में इस साइड मूव कर करके ये भिड़ेगा और यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बना सकता है. फोल्ड माउंटेन्स बना सकता है. हमको पता है कि इस
ग्रेट अफ्रीकन फॉल्ट का कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। कैसे पता है? ईयर 2001 में उसके अराउंड यहाँ पर गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था, भुज अर्थक्वेक। गुजरात में, जिसको लोगों ने कनेक्ट किया था कि ये ग्रेट अफ्रीकन फॉल्ट से तरंगे आई हैं, वाइब्रेशन आई हैं, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक हुआ था, भुज अर्थक्वेक 2001। इसका मतलब अफ्रीकन फॉल्ट लाइन और इंडिया में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, ठीक है। सो ये आपका एक प्लेट टेक्टोनिक वाला पार्ट हो गया। याद रखना अफ्रीकन फॉल्ट लाइन में लेक विक्टोरिया नहीं आता है। लेक विक्टोरिया के सराउंडिंग कंट्रीज है आपका कुछ केनिया, युगांडा, तंजानिया, केनिया, युगांडा और तंजानिया। सो इसमें काफी सारे टॉपिक हुए। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले होंगे वो है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जिसको आप बताया जा रहा है सुएज कनाल का ऑल्टरनेटिव। अगला टॉपिक आपका है सुएज कनाल का ऑल्टरनेटिव, जिसमें इंडिया, ईरान और रशिया मिलके INSTC एस्टैब्लिश करने वाले हैं। ठीक, थैंक यू।